with this talk. My topic is erectile dysfunction in the chronic diseases. This is my introduction. The CRSM is certified course of reproductive and sexual medicines. We are training the doctors in the sexual medicines, and by grace of God, we are doing it for last 8 years, and around about 50 to 60 doctors we trained per year, and they are serving nook and corners of the Pakistan, and that is our humble contribution to the society of Pakistan. And finally, the official reviewer of the Journal of Sexual Medicine, because it is the world highest impact journal in sexual medicine, and by grace of God, I am the reviewer for last 15 years. This is my mentor, Professor Harun Rashid. I have not been his directly student, but I have been so impressed, and he was so supporting that I still consider him as my mentor. This is Man Karta Hai. This is the poetic expression of sexual response. तेरे नैनों की गहराइयों में उतरने को मन करता है. This is the desire phase. Then the arousal. कभी तेरी सांसों की मस्तियों में झूलने को मन करता है. The excitement, the arousal. Now the plateau and the orgasmic phase. गुम कर दो मुझे पानी में, गुम कर दो मुझे पानी में नमक की तरह, वरना person feel he is being melting into the universe. गुम कर दो मुझे पानी में नमक की तरह, वरना पूरा समुंदर एक सांस में पीने को मन करता है. Now let's come to the points, the causes of erectile dysfunction. मैं तेज गाम की स्पीड से चलूंगा क्योंकि मुझे एक बड़ी धमकी मिल गई है, तो सीधे हो जाओ, राइट? तो किसी स्टेशन पे रुकेंगे और किसी जंक्शन पे रुकेंगे, ठीक हो गया? So the physical causes, the cardiovascular disease, atherosclerosis, metabolic syndrome including the lipid dysregulation, hypertension, diabetes mellitus, obesity. I also include the uric acid because it plays havoc in the sexual health. The hormonal imbalance, low testosterone, we know about testosterone, prolactin. This is a hormone which actually dampens the libido, also causes the erectile dysfunction. Increase estradiol, estradiol female hormone, but it is antithesis to the testosterone. So person having the male boobs and other things and fat distribution have a high estradiol and also suffer from the erectile dysfunction. Then the thyroid disorders, especially the hypothyroid. Neurological disorders, Parkinson's disease, multiple sclerosis, Peyronie disease, scar tissues in the penis, which causes the C-shaped penis. Then sleep disorders, insomnia and sleep apnea, the side effects of certain medication, substance abuse, alcohol, tobacco, illicit drugs like cocaine, ice, and heroin, and the spinal surgeries and the pelvic surgeries. So there are psychological causes, the stress and anxiety, depression, performance anxiety, unresolved psychological conflicts. They are all self-explanatory things. I will not talk on these things. Then psychological trauma, hyperpremature ejaculation. Yes, the person tend to get ejaculate even before getting the full erection. So it becomes the cause of the erectile dysfunction. Then the lifestyle factors, lack of physical activity, poor diet, low protein, high carbs, trans fat, processed food, and the vegetable oils. Now, एक बात अभी कह रहे थे, स्मोक से 7 years आपकी लाइफ एक्सपीरियंसी कम हो जाती है, लेकिन मेरे पास एक खुशखबरी है. With the regular sexual activity, you add on 10 years of life expectancy. तो परेशानी की बात कोई नहीं. 10 years और फीमेल के लिए 7 years. ठीक है, अच्छा जी. 7 साल कर दे.
Thank you. And then we come to the point of the chronic diseases. The chronic disease list is exhausting, but we have the diabetes, cardiac disease, metabolic syndrome, CKD, arthritis, malignancy, depression, then age-related factors. Age, बुढ़ापा. कहता जी दादाजी क्यों पौध हो गए? कहता बुढ़ापे की वजह से. कहता बड़ी खतरनाक बीमारी है, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे मर गए इसकी वजह से. बुढ़ापा बड़ी खतरनाक बीमारी है. सो मैंने आई हैव आइडेंटिफाइड 2 फैक्टर्स. बुढ़ापे को बड़ा स्टडी करना शुरू कर दिया मैंने. हाँ वही बिल्कुल डॉक्टर अर्शद ने मुझे कहा था. तो 2 फैक्टर्स आई हैव आइडेंटिफाइड जो कि बुढ़ापे में कॉजिंग द इरेक्टाइल डिसफंक्शन. दैट इज अ रिडक्शन इन द नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल. जब बंदा 40 का हो जाता है तो 50% ड्रॉप हो जाता है. जब 60 का होता है तो 15% पे आ जाता है. और बाकी डायबिटीज है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, स्मोकिंग कर रहा है, फिर तो समझेगा वो 5-10% पे बैठा है. मैं मुक गया कम, गल गई है मुक, ठीक है, एवं नहीं पहली चूक, तो मसला बन जाता है. देन द सेकंड फैक्टर विच आई आइडेंटिफाइड दैट इज द लो टेस्टोस्टेरोन लेवल. इसका सब जानते हैं, ठीक होगी बात. देन इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ द कोमॉर्बिड कंडीशंस इन ओल्डर एज. ओल्ड एज के तोहफे, तो इन तोहफों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे तो बंदे बन के रहेंगे, वरना बाबा होती रहेगी. Then the pathophysiology of the chronic diseases. So all chronic diseases causing the ED problem, and there is the common factors. I will discuss all. Inflammation, the tissue damage from the immune system, activation, tumor necrosis factor alpha, interleukin 6, then oxidative stress, that increase in the reactive oxygen species that damages the DNA and protein, exacerbated by the low antioxidant, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट भी लो हो जाते हैं. मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन हमें पता ही है. एंडोथेलियल डिसफंक्शन, impaired vasodilation and promoting the atherosclerosis, especially because of nitric oxide कम हो जाती है, उसके से vasodilation कम हो जाती है और inflammation भी बढ़ जाती है और atherosclerosis भी start हो जाता है. Then the fibrosis, scar tissues, disrupts the organ functions, immune dysregulation, autoimmune conditions, and of course the chronic infections. They are all in part of the chronic diseases. Then the neurohormonal activation, sympathetic nervous system overactivity. Sympathetic overactivity because of the anxiety, stress, or when there is an increased sympathetic propagation, there is a vasoconstriction in the corpus callosum that causes the flaccidity of the penis. And secondly, it also induces the orgasm because the orgasm is mediated by the sympathetic activity by the alpha receptors. So both diseases, the erectile dysfunction and premature ejaculation, would follow the increase of the sympathetic activity. Then the cellular senescence, cell not regenerating but getting old, increased tissue inflammation. और जैसे बाबे बहुत बढ़ जाते हैं ना, लीवर में बढ़ गए थे तो इकोनॉमी सुबह हो जाती है, तो सेल्स हैं वो बस बूढ़े मरते नहीं हैं. तो that is the cellular senescence. Then genetics and epigenetics changes, mutation, environmental impacts on the gene expression. अच्छे जीन एक्सप्रेस नहीं होते, पैड़े शक्लें दिखाते हैं. लाइफस्टाइल फैक्टर्स वो हमने देख लिए. क्रोनिक डिजीजेस, impaired vascular, metabolic and hormonal health contribute to the erectile dysfunction. Inflammation and oxidative stress exacerbates the symptoms. Chronic inflammation and sexual dysfunction. ये जो inflammation है ना, ये उस चोर की तरह जिसे पंजाब पुलिस पकड़ लेती है तो सारे मोहल्ले के जुर्म, बल्कि सारे शहर के डाके और उस पे लगा देती है उस बंदे के, गरीब आदमी पे. हमने भी ना आजकल ना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को पकड़ लिया डॉक्टरों ने, तो हम भी सेक्सोलॉजिस्ट भी पीछे नहीं रहेंगे. हमने भी बैती गंगा में हाथ धोने हैं, तो हम भी सारा इल्जाम जो ना इसी पे लगाएंगे, यही चोर है, मारो मारो इसको. तो हम चलो हम मिलके हम देखते हैं ये क्या क्या करता है. कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मोस्ट डिजीज, कहते हैं जी डिजीज का शुरू भी इन्फ्लेमेशन, इसका एंड भी इन्फ्लेमेशन. ठीक हो गया. तो करता क्या है जनाब, द वेस्कुलर हेल्थ को डैमेज कर रहा है थ्रू एंडोथेलियल डिसफंक्शन, reduces the blood flow causing the erectile dysfunction.
हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन को कम कर दिया, एस्ट्रोजन को बढ़ा दिया, लिबिडो गई फारग। अच्छा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि इन्फ्लेमेशन को सेक्रेटरी ने भी पकड़ लिया, क्या हम पीछे नहीं रहेंगे। हमने कहा जनाब डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग, इसमें भी इसका बड़ा रोल है, तो इसको हमने जनाब काबू करना ही करना है। देन इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन, कंडीशन लाइक पेल्विक पेन reduces the sexual activity, metabolic syndrome, obesity contributes to the poor blood flow and the hormonal disruption. Then metabolic syndrome and sex dysfunction impact on the sexual function, and men erectile dysfunction, low testosterone कर रहा है, psychological impacts like anxiety and depression कर रहा है। अच्छा जी, sexual dysfunction in diabetes from 35 to 75% इसकी प्रेवलेंस है। यानी कि जब हमारे पास डायबिटीज का मरीज आता है तो सेक्सोलॉजिस्ट की टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं, कांपे टांग जाती हैं उसकी। क्यों कांप जाती है? क्योंकि उसको भी हर कॉम्प्लिकेशन जो पॉसिबल होती है, हर कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसमें पाया जाता है। अगर वो उसको ट्रीट कर लेता है, इसका मतलब है कि उसको पक्का पक्का FSCSM की डिग्री जो है ना वो दे देनी चाहिए। अच्छा जी, अब वो कर क्या रहा है? स्टार्ट्स विद इंसुलिन रेजिस्टेंस and pre-diabetes, end up with the loss of the glycemic control and high blood sugar and HbA1c level, high inflammation and oxidative stress in the body. Inflammation भी कर रहा है, oxidative stress भी कर रहा है। अब ये कर कैसे रह जा? Number one, it causes the vascular damage. कैसे कर रहा है? Impairs the small vessels, promotes atherosclerosis in the medium and large vessels, endothelial damage mediated by the inflammation, oxidative damage and low nitric oxide level. दूसरा, it is causing the neuropathy. And neuropathy कैसे कर रहा है? Through the demyelination of the axons, dendritic damage, oxidative stress and inflammation, both somatic and especially the sensory nerves, they are affected. क्योंकि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना तो टच से ही सेक्सुअल रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट होता है। तो जब उसका सेंसरी टच कम हो जाता है तो वो बंदा जो है ना वो कहता है बस मेरा मूड नहीं है। अच्छा, तो सेकेंडली ऑटोनॉमिक नर्व्स आर इन्वॉल्व कॉजिंग द बोथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड एजैकुलेटरी डिसफंक्शन, क्योंकि ऑटोनॉमिक में पैरासिम्पैथेटिक इज द मेन सोर्स ऑफ इरेक्शन। सो जब वो इन्वॉल्व हो जाता है तो देयर इज both we can see the erectile dysfunction and ejaculatory problems like premature ejaculation, retarded ejaculation and even the retrograde ejaculation, सब के सब आपको मिलेंगे। अच्छा, तो एक और मैकेनिज्म है कि वेजोविरुम, द स्मॉल वेसल सप्लाई टू द लार्ज नर्व्स, ये भी डैमेज हो जाती हैं जो कि बिकॉज ऑफ डायबिटीज। तो वो नर्व जो है उसकी वजह से भी डैमेज होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द स्मॉल वेसल सप्लाइंग टू द नर्व्स। सो दिट इज एन एडिशनल मैकेनिज्म। देन एसोसिएटेड इश्यूज, जब डायबिटीज हो गई, लो टेस्टोस्टेरोन भी हो गया ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ गए, तो पुअर ब्लड सप्लाई हो गई टू द टेस्टिस एंड पुअर सीमन प्रोफाइल। टेस्टिस है उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ गई, उनकी ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो उससे क्या हो गया कि एक तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो गई और सेकेंडली उसकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो इंपेयर हो गया, उसको सब कुछ हो गया। मिसाल के तौर पे ओलिगोस्पर्मिया भी हो गया, उसको टेट्रोस्पर्मिया भी होगा, एस्टेरोस्पर्मिया भी हो गया, स्पर्म्स की भी उसकी जो है ना वो बॉट लग जाती है, उसकी जो है ना बैंड बन जाती है। सो बाकी डायबिटीज आल्सो कॉज द डिसरेगुलेशन ऑफ HB एक्सिस, जिसमें आपको पता ही है कि HB एक्सिस का एक जो पार्ट है वो जाके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में भी रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो भी इफेक्ट हो जाता है, तो गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। देन द लिपिड डिसरेगुलेशन, आपको पता ही है, जब इंसुलिन जो है जब ये हाइपर इंसुलिनिया होता है इन द डायबिटीज, तो वहां पर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो जाता है and that causes all sort of problems like atherosclerosis and the heart disease and also affects the level of the testosterone। और हाई ब्लड प्रेशर भी कर रही है, हाइपरइंसुलिनिया हो गया तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया, फैटी लिवर भी हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज भी हो गई है। सो इस बंदे में वी हैव टू असेस द डिप्रेशन इन द पेशेंट बिकॉज द इन्फ्लेमेशन एंड लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम तो रहती हुई नहीं, तो जिंदगी हो जाती है सारी।
तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन सेकंड टू द मेडिकेशन, क्योंकि डॉक्टर्स अपना रोल रो प्ले करते हैं, वो बंदे में थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश रह गई है तो फिर डॉक्टर्स ऐसी उसको दवाइयां देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, थायराइड देते हैं, डायबिटिक देते हैं कि कहते तेरा मच जड़ा ना वो मैं मार के छड़ना है। डॉक्टर जो है ऐसी उसको दवाइयां देते हैं, तो रिजल्ट ये निकलता है कि जनाब वो बंदे की जनाब वो कहता है बस अब जिंदगी जो है ना आखिरी दमों पे, जिंदगी जिंदगी नहीं है, शर्मिंदगी शर्मिंदगी है। अच्छा जी, कार्डियक डिजीज है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, शेयर्ड प्रेसर फिजियोलॉजी है उनकी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैन सर्व एज एन अर्ली वार्निंग इन कार्डियक डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज शेयर कॉमन फैक्टर्स with erectile dysfunction because the penile vessels are smaller than the coronary vessels. जो penile vessels हैं 1 to 2 मिलीमीटर की हैं, जबकि coronary vessel 2 to 3 मिलीमीटर है। तो common factors include the hypertension, poor glycemic control, poor lipid control, obesity, low physical activity, inflammation in body, smoking, stress, anxiety, depression, और ये इसका मतलब है these two are like non-identical twins, यानी कि कार्डियक डिजीज एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये जो है ये जुड़वा भाई हैं। इम्पैक्ट ऑफ द कार्डियक मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक्स कैन वर्सन द सेक्सुअल डिस्फंक्शन। इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, घंटियां बज गई हैं। अच्छा, ये अपने रिमोटेड आर्टरीज, क्रोनिक डिजीज, अच्छा ड्रग्स इन्वॉल्व, इनकी भी लिस्ट बहुत लंबी है, अगर ये रह जाएगी तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा। लैब इन्वेस्टिगेशंस, द सीरम टेस्टोस्टेरोन, टोटल फ्री टेस्टोस्टेरोन करना है, सीरम प्रोलेक्टिन लेवल करना है, HbA1c लेवल करना है, फिर लिपिड प्रोफाइल है, यूरिक एसिड है, मैं सी रिएक्टिव प्रोटीन भी करता हूं और मुझे बहुत ही इसमें पॉजिटिव फाइंडिंग मिल रही है। सीरम स्टेरॉइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी आपकी चॉइस है करनी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैं बता दूं कि आपको एज यंग एज 25 to 30 ईयर के बच्चों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल रही है। मैं हर पेशेंट का करवा रहा हूं। अच्छा, कलर डॉपलर ये पैसे हो तो करवा लें। अच्छा जी, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मैनेज द अंडरलाइंग डिजीज लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, पेन मैनेजमेंट, कार्डिक इजेक्शन 40 to 45% होनी चाहिए और 2 to 3 मिनट्स होने चाहिए, और ब्लड ऑक्सीजन लेवल उसके ठीक होने चाहिए। LFT और RFT सब आपने सब काम फैमिली फिजिशियंस का, तो इसका मतलब है कि पहला काम फैमिली फिजिशियंस का, खराब भी उसी ने करना है, ठीक भी उसी ने करना है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, लोअरिंग ऑफ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल में वेट लॉस करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट खाओ, मेडिकेशन में PD5 इनहिबिटर्स, सिल्डेनाफिल, टेडेलाफिल, बोर्डेनाफिल, एवेनाफिल, फिलिफिल, यानी हर चीज फिल, टैबलेट और रेगुलर और सबलिंगुअल भी आ गए हैं, इसके जेल भी आ गए हैं। एपोमॉर्फिन एक मेडिसिन में पाकिस्तान में नहीं है, PT1 ये भी अभी अवेलेबल नहीं है। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी है, बड़े हम है, और ICI, पेपावरिन, एल्प्रोस्टल और इंजेक्शंस हैं, और फिर उसकी मैनेजमेंट में वैक्यूम पंप है, रीवेस्कुलराइजेशन ऑफ पीनस, implants है, malleable and inflatable, and regenerative therapies like shockwave therapy, PRP therapy, stem cell therapies, red light therapy, radio frequency therapy and EMTT। और न्यूट्रास्यूटिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारे टेरेस टैबलेट्स, टोगोटेलिवरा शामिल है, अमीनो एसिड में एल-सिट्रोलिन और डी-एस्पार्टिक एसिड शामिल है। तो जनाब ये बस आखिरी में एक रुबाई आपको सुना देता हूँ। हसीना एक चूमने के वास्ते चेहरा अपना गुल के पास चुलाई, कांटा हुआ पेवस्ता वजूदे गुदास में तो वो चिल्लाई, फूलों पे तो हूँ मेहरबान, हमसे बरते हैं बेतनाई, ये चीख मेरे दिल की थी, सदा तेरे होंठों से आई। थैंक यू। ये सेक्रेटरी रह गई है।